Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and our third number is 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. Good evening, Sonu. धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगाबाश्यम। Thank you, Sonu. The top stories. Domestic debt mutual funds get inflow of 1.1 lakh crore rupees in the June quarter. Foreign investors pump in over 2,300 crore rupees in equities so far in July, and India increases holdings of American government securities to nearly $170 billion in May this year. ऋण श्रेणी के घरेलू म्यूचुअल फंडों को मिला अप्रैल से जून तिमाही में 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश। विदेशी निवेशकों ने जुलाई में अब तक शेयरों में 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली और भारत ने मई में अमेरिका की सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ाकर कुल 170 अरब डॉलर तक पहुंचाया। Well, now for all the details. Debt mutual funds saw an inflow of 1.1 lakh crore rupees in 3 months ended June 2020, after witnessing massive redemptions in the preceding quarter. The positive inflow pushed the asset base of debt mutual funds to 11.63 lakh crore rupees at the end of June, from 11.5 lakh crore rupees at the end of March, according to data from the Association of Mutual Funds of India, AMFI. As per the data, inflows into debt funds were at 1.1 lakh crore rupees in the 3 months ended June, compared to outflows of 1.1 lakh crore rupees in the January-March quarter. Nearly 80% of the total inflows in the fixed income segment came through liquid funds. Liquid funds witnessed inflows of 86,493 crore rupees in comparison to an outflow of 94,180 crore rupees in the March quarter. In addition, banking and PSU category received inflows of 20,912 crore rupees and corporate bonds received 18,738 crore rupees. However, credit risk funds saw an outflow of 25,905 crore rupees. Apart from debt funds, investors pumped in 11,710 crore rupees in equity-oriented mutual funds during the June quarter. और अब हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। मोहन खांडवा से हैं। मोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मैं खंडवा से मोहन भावना बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी बोलिए। मैं एक फिक्स शेयर नहीं हूँ और उसके अलावा मेरी आय भी इतना नहीं है मतलब मैं टैक्स पे करती हूँ। और तो हमारे लिए क्या म्यूचुअल फंड है या नहीं है? Yes, Dhirendra, what would you say? Is not a taxpayer.
should he go ahead and invest in mutual funds or not? Yes, very much. He should decide, what money is, whether this money is to be invested for the long term, Yeah. which is 5 years and more, or period less than that. Dhirendra, I would He should request you start to answer in Hindi, so that Yeah. he can follow it easier. अच्छा, जी हाँ, अगर ये कुछ समय के लिए पैसा लगाना है तो म्यूचुअल फंड में जरूर पैसा लगाइए, और म्यूचुअल फंड बहुत आसान जरिया है पैसा लगाने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के होते हैं, तो कई सालों के लिए पैसा लगाना है, इक्विटी फंड में पैसा लगाइए। 4-5 साल के अंदर अगर आपको ये पैसा चाहिए होगा तो डेट फंड में पैसा लगाइए, जिसमें कि पैसे के मूल्य में, जो आपका निवेश है उसके मूल्य में गिरावट की संभावना बड़ी कम होगी। Right. And let's move ahead and take our next caller. We are joined by Manoj from Malda in West Bengal. Good evening, Manoj. And what's it that Good you'd like evening, to sir. talk about? गुड इवनिंग। Yeah, welcome. मैंने 4.5 साल से जी। 5 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ICICI ब्लू चिप इसमें 2,000, जी। ICICI ब्लू डिस्कवरी इसमें 3,000, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी इसमें 5,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी इसमें 8,000 और निप्पॉन स्मॉल कैप में 5,000। Okay. 4.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। Yeah. लगभग 12 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया है। Right. तो मेरा लॉन्ग टर्म के नजरिया है। Yeah. जी। Yeah. And Nippon has been taken over. डिटेल्स में बताइएगा। Yeah. आपने अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया है। अगर अभी भी ये पैसा 5-10 साल अगर इसकी जरूरत नहीं है तो ये आपकी कैटेगरी के अच्छे फंड है। इसमें आपने देखा होगा कि आप कुछ फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपना निवेश जारी रखिए। खासकर जैसे वैल्यू डिस्कवरी अच्छा नहीं कर रहा था, अब अच्छा करना शुरू किया, अब उसके प्रदर्शन में थोड़ा बदलाव है। निप्पॉन का स्मॉल कैप, जिसमें अगर ये पैसा अभी भी आप 8-10 साल के लिए पहले नहीं चाहिए, तो आपने अच्छे फंड का चुनाव किया है, अलग अलग तरीके के फंड का चुनाव किया है जो अपनी कैटेगरी के अच्छे फंड है। जरूर इसमें अपना निवेश जारी रखिए। अगले कॉलर हैं चेन्नई से काशीनाथ। काशीनाथ जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। पूरा मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मेरा सवाल धीरेन्द्र सर ये है कि मेरा पास, मैं 2 साल से SIP कर रहा हूँ। मेरा पास 5 फंड है। फंड का नाम मैं बता देता हूँ, और ये फंड कैसा अच्छा है, नहीं ठीक है कि नहीं, ये थोड़ा बोलिएगा। फंड का नाम है, एक में इक्विटी फंड, नंबर 2 मीरा एसेट का लार्ज कैप फंड, नंबर 3 HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, नंबर 4 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, नंबर 5 है फ्रैंकलिन इंडिया का US अपॉर्चुनिटीज। हर फंड में 1-1 हजार रुपया जा रहा है। जी जी। ओके, ये फंड का परफॉर्मेंस इसमें बने रहूं या दूसरा चेंज करूंगी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। धन्यवाद जी। नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। ये 5 फंड मिला करके, जिसमें कि 20% पैसा आपका US अपॉर्चुनिटी फंड में जा रहा है। आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, अपना निवेश जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि अगर आपकी आमदनी बढ़ती है या आप बचत ज्यादा कर सकते हैं, तो ये जो 1-1 हजार रुपए लगा रहे हैं, आप इसको बढ़ा के कब 1,500 कर सकते हैं, 1,200 रुपए हर महीना कर सकते हैं। जो आप रकम लगा रहे हैं उसको उसमें बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फिर फंड में किसी भी तरह की कोई फेरबदल न करें। Right. And now let's move on and take our next caller. We have VK Gupta joining us from Mumbai. Good evening, Mr. Gupta. And what is that you'd like to talk about? I would like to talk about this foreign currency. Actually, कभी जब भी foreign currency लेना है, कहीं भेजना है, तो जो RBI की रेट्स है उससे ज्यादा बैंक वाले लेते हैं, और बैंक वालों के अलावा वेंडर्स होते हैं वो लेते हैं। वो आदमी की जरूरत के हिसाब से कितना भी कमीशन लगा करके RBI रेट से ज्यादा लेते हैं, और उनसे खरीदना है तो भी ज्यादा लेते हैं और बेचना है तो भी ज्यादा लेते हैं। तो इसके लिए कोई रेगुलेटर नहीं है क्या? Yes, धीरेन्द्र। जी हाँ, इसके लिए रेगुलेटर है और RBI इसी चीज का रेगुलेटर है। लेकिन और ये सारे जो लोग हैं, बैंकों को लाइसेंस RBI देता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो बाई सेल स्प्रेड है, यही इनका कारोबार है।
जो खरीदने का दाम और जो बेचने का दाम है, इसमें जो अंतर है यही उनका प्रॉफिट है। और वो एक रिस्क भी लेते हैं कि जो भी फॉरेन करेंसी वो होल्ड करते हैं उसके दाम में जो उतार चढ़ाव आता है, ये उनका नुकसान या फायदा हो सकता है। इस पे जरूर गाइडलाइन है। और जब भी आपके पास मौका हो, जब आप कोई ट्रैवलर चेक खरीद रहे हैं या बैंक से लेते हैं, तो वो एक ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क है उनका, जिसमें कि वो काम करते हैं कि किस दाम पे। लेकिन आरबीआई ही ये प्रदान करता है कि एक बाई रेट और सेल रेट दोनों ही आरबीआई का भी रेफरेंस होता है, और आपका खरीदने का दाम और बेचने का दाम आरबीआई का भी रेफरेंस है। और मुनाफा निर्धारित करना अलग अलग बैंकों का अलग है। आप जरूर, अगर आपको लगता है कि कभी आपके साथ भारी गड़बड़ हो गया है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। मुंबई से ही है हमारे अगले कॉलर रत्नाकर, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आप अपने रेडियो सेट की जो वॉल्यूम है वो प्लीज हल्की कर दीजिए, एको आ रही है। हाँ, मेरा सवाल है कि लास्ट 3 साल से मैं आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेविंग फंड में और एक्सिस फंड में एनडीसी में रिबेट मिलने के लिए एसआईपी दे रहा हूँ जी। और अब ये 3 साल हो जाएंगे ये मार्च में। तो अभी वो कंटिन्यू करना चाहिए कि वो मैं पैसा वापस ले लूं, एक सवाल है। पर वापस नहीं चाहिए तो वैसा ही पैसा वो रख सकते हैं क्या, और जब भी मुझे चाहिए तभी मैं निकाल सकता? जी जी हाँ, टैक्स सेविंग फंड में लगा हुआ पैसा आपके लिए पैसा निकालना जरूरी नहीं है। अगर इस पैसे की जरूरत नहीं हो तो आप उस पैसे को पड़े रहने दे सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि पड़े रहने देना चाहिए, लगे रहने देना चाहिए। 3 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं चाहिए। और खासकर इस मौके पर जहां मुझे लगता है कि पिछले 3 साल में कोई खास रिटर्न नहीं मिला है, और ये खासकर जब अभी मार्च में गिरावट हुई थी उसके बाद रिकवरी के बावजूद भी टैक्स सेविंग फंड में पैसा पूरा रिकवर नहीं हुआ है। ये दोनों फंड आपके अच्छे हैं, खासकर एक्सिस टैक्स सेवर तो बेहतरीन फंड साबित हुआ है। और उसके बाद 3 साल होने के बाद इस पैसे को पड़े रहने दें, और जब भी आपकी इच्छा हो आप पैसा निकाल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं जी। अभी तक रिटर्न पॉजिटिव है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं है। और आमतौर पे 5-7 साल का नजरिया रखना चाहिए। लेकिन टैक्स सेविंग के फंड में निवेश करने का जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 साल, उसके बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते। आप निकालने को आजाद है, निकालना नहीं चाहिए। राइट। And Rajesh is joining us next from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. Yes, Rajesh, do we have you online? Yes. Yeah, welcome. सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 5 म्यूचुअल फंड अपने से सिलेक्ट किए हुए हैं। डीएसपी हेल्थ केयर फंड, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एक्सेस मिड कैप फंड, एलएनटी ट्रिपल एसी बॉन्ड फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड। तो इसमें हेल्थ केयर फंड मेरा 2-3 साल का विजन है, बाकी में मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है। तो ये बताइए कॉम्बिनेशन कैसा है। और एक दूसरा मैंने एक ग्रुप बनाया है इमरजेंसी फंड के लिए अपने लिए, एचडीएफसी लिक्विड फंड और एसबीआई लिक्विड फंड, जरा इनके बारे में बताइएगा। Yes, Dhirendra. You always reservations for sectoral funds. Yes, I have reservations for sectoral funds, but he has his own thinking. Yeah. तो इसलिए आमतौर पे मेरी सलाह होती है कि किसी भी सेक्टोरल फंड में पैसा न लगाएं। लेकिन आपको लगता है किसी वजह से कि हेल्थ केयर फंड में पैसा लगाना आज के दिन बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है, आपको कोई खास जानकारी है, और तो आप जरूर लगाइए। लेकिन आमतौर पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो बाकी आपके फंड में पैसा लगा हुआ है उसका एक निश्चित भाग हेल्थ केयर फार्मा स्टॉक्स में जरूर लगा हुआ होगा, हेल्थ केयर सेक्टर में लगा होगा। और लेकिन ये आपकी इच्छा है, वो आपके निवेश का एक छोटा भाग हो सकता है अगर कोई इसके खास कारण है। और जो आपके जो इमरजेंसी फंड हैं वो अच्छे हैं, और लिक्विड फंड में आप निश्चिंता से अधिकतर फंड में आप पैसा लगा सकते हैं बिना किसी खास चिंता के। और ये दोनों फंड अपने साइज की वजह से कम रिस्की है। बाकी जो आपका पोर्टफोलियो है वो अच्छा है। हेल्थ केयर के बारे में जो मेरा रिजर्वेशन था वो मैंने आपको बताया। ब्रीफली हमारे सभी ऑडियंस के लिए बताएंगे कि लिक्विड फंड क्या होता है, ब्रीफली। लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जो कि बहुत कम मैच्योरिटी वाले पेपर्स में ही निवेश करता है, फिक्स्ड इनकम पेपर्स, मनी मार्केट फंड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करता है। और इनका जो वैल्यूएशन है वो ऐसे किया जाता है ताकि यहाँ पे गिरावट की संभावना नहीं होती है। कब 60 दिन से ज्यादा मैच्योरिटी के किसी पेपर में लिक्विड फंड पैसा नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से काफी कम रिस्की हो जाते हैं। जी,
अगले कॉलर हैं मुंबई से एकनाथ जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, पीएमसी बैंक में मेरा 1 लाख का एफडी रिन्यूअल पूरा मैच्योर हुआ है जुलाई में, तो एफडी अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है और रिन्यू भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन, मेरा मेडिकल का प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल में एडमिट किया था, पैसे का जरूरत था, 4 लाख तक देंगे बोले थे, लेकिन हमारा अभी बोलते हॉस्पिटल में एडमिट करते समय आप बताना चाहिए था, अभी अपने सब क्रेडिट कार्ड से पैसा भरा है तो अभी पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बोले थे। उसी लिए क्या करूँ मैं? तुरंत आप आरबीआई में दोबारा शिकायत कीजिए पीएमसी बैंक में, और अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ताकि कुछ सुनवाई हो सके। लेकिन मुझे बड़ी कम उम्मीद है, क्योंकि जितना जिस तरह से ये बैंक का कोलैप्स हुआ है और जिस तरह से लोगों का पैसा फंसा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। मुझे नहीं पता है कि अभी उनकी क्या स्थिति है या आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं आप जैसे डिपॉजिटर्स के हक को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए। अगले कॉलर है दिल्ली से विशाल, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथ बने रहिए, एक खबर पर नजर डाल के आपसे बात करेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई जुलाई में अब तक भारतीय बाजारों में शुद्ध बिकवाल रहे हैं। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने शेयरों में 2,336 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन ऋण श्रेणी में 2,422 करोड़ रुपए की बिक्री की, जिसके चलते 1 जुलाई से 24 जुलाई की अवधि में भारतीय पूंजी बाजारों से विदेशी निवेशकों ने 86 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की। पिछले महीने एफपीआई ने 24,053 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की थी। And Vishal joins us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग सर। Yeah, go ahead, put your question. सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं शेयर मार्केट में एंटर करना चाहता हूँ, तो किसी ने सलाह दिया कि आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि मैं शेयर मार्केट में इंटर कैसे कर सकता हूँ, और उसकी ज्यादा गहन जानकारी, या अगर इंटरेस्ट ट्रेड एंड डे ट्रेडिंग की तरह काम करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ, और क्या जानकारी होनी चाहिए मुझे एक अच्छे इन्वेस्टर के नाते पूछ रहे हैं। Yes, Dhiren. You want to be a trader, day trader. हाँ जी, आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या आप निवेशक बनना चाहते हैं, ये आप निर्धारित करें। आप स्टूडेंट हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी के लिए आपको निवेशक या ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आवश्यक जानकारी किताबों में उपलब्ध है, बहुत सारे वेबसाइट है जहां आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मुझे लगता है कि आप ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के पहले जानिए कि ये सब चीज क्या है, कैसे काम करता है। और मुझे लगता है कि ट्रेडर बनने की इच्छा रखना, ये निवेश तो मुझे समझ में आता है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे लॉन्ग टर्म कंपनियां लॉन्ग टर्म इक्विटी और शेयर रेज करती हैं, और निवेशक उसमें भागीदार बनता है शेयर खरीद करके या बॉन्ड्स खरीद करके। तो जानकारी पे हासिल करने के लिए, समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेडर बनना मुझे लगता है कि काफी नुकसानदेह चीज है। इसमें आमतौर पे लोगों को नुकसान होता है अगर आपके पास कोई खासी जानकारी नहीं हो, या आपके पास टेम्परामेंट नहीं हो, या बाजार का माहौल। लेकिन मुझे लगता है आसानी से सीखा भी नहीं जा सकता है। इसलिए एक कम रकम से जरूर आप कोशिश कीजिए, शायद वो सीखने का ये दाम। और निवेश करना वो एक अलग चीज है कि आप लंबे समय का पैसा बाजार में लगाना चाहते हैं। उसके बहुत सारे जरिए हैं। म्यूचुअल फंड एक जरिया है, शेयर में पैसा सीधा लगाना एक दूसरा जरिया है। तो आप पहले पैसा इकट्ठा कीजिए, और अभी आप विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है ये सारा कुछ पढ़िए। 2-3 किताब जो कि मुझे शुरुआत में बड़ी मदद मिली थी समझने में। वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, ये कहानी की तरह किताब है जो कि आपको बता पाता है कि बाजार कैसे काम करता है, शेयर में पैसा कैसे लगाना चाहिए, उससे फायदा क्या होता है। इसके ऑथर है पीटर लिंच। उसके अलावा ढेर सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं। गहन अध्ययन के लिए और आप कहीं पे भी किसी भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन है या कहीं पे है, जहाँ पे आप मॉक अपना पोर्टफोलियो सेटअप कर दीजिए। आप सोचिए कि आपके पास 5 लाख रुपए है, आप आज लगाते हैं, आज के दाम पे लगाते हैं, कब बेचते हैं, कब खरीदते हैं। आप बिना पैसा लगाए हुए आप ये काम करके देखिए, तो आपको पता चल पाएगा कि कि ये होता क्या है, कैसे आपको शुरू में लगेगा कि ये बहुत आसान काम है, और थोड़े समय के बाद पता चलेगा कि आपको फायदा या नुकसान होने में कितना बड़ा रैंडमनेस है। तो इन चीजों को अप्रिशिएट करना शुरुआत में बहुत जरूरी है।
अगले कॉलर है दिल्ली से सतीश। सतीश, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम और धीरेन्द्र सर जी, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है सर वो फिक्स डिपॉजिट में है, लेकिन वो अब इंटरेस्ट एकदम कम हो गया, 5% हो गया। अब किसी भी दिन रिजर्व बैंक रेपो रेट कम करेगा तो वो 4.5 आ जाएगा। तो सर ये मैं इसको निकाल के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉलर ज्यादा सिक्योर रहेगा या म्यूचुअल फंड रहेगा? क्योंकि डॉलर तो आदमी खरीद के अपने घर में रख सकता है, तो म्यूचुअल फंड का सर बताइए, दोनों में सिक्योर कौन सा है, बेस्ट कौन सा है इन्वेस्टमेंट? धन्यवाद। डॉलर खरीद के घर में रखना जिसका दाम बढ़ता रहेगा, ये मैंने कई बार सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपको ऐसा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉलर से मिलने वाला जो रुपये का डेप्रिसिएशन है, इसके बारे में ये सोचना कि आप वो निश्चिंता से आपको अगर लंबे समय का एवरेज देखें तो 4-5% की गिरावट रही होगी, जो कि आपका मुनाफा है कि हर साल 4-5%। लेकिन ये हर साल 5 साल नहीं बढ़ता है, जिस तरह से ब्याज दरें, जिस तरह से आपको ब्याज मिलता है। उसके अलावा मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि डिपॉजिट रेट के दरों में गिरावट होगी, लेकिन डिपॉजिट रेट के दरों में जो गिरावट होगी, इसके बावजूद मुझे लगता है कि उस तरह का पैसा जो आपको कभी भी बिना किसी अनिश्चितता के वो पैसा आप निकाल सकते हैं, उसके लिए विकल्प वही है कि कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो पैसा आपको वहीं पे लगाना चाहिए। उसके कुछ दूसरे विकल्प हो सकते हैं, लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड दूसरे विकल्प हैं जो थोड़ा उससे बेहतर रिटर्न दे पाएंगे, लेकिन गिरती ब्याज दरों की स्थिति में वहां पे भी रिटर्न में कमी आएगी। Right. And Govind joins us next from Maharashtra. Good evening and welcome to Market Mantra. Yes, sir. Yeah, go ahead. मेरा सवाल ये है सर, अपन जो शेयर मार्केट के जो ब्रोकर के पास हम जो अकाउंट खुलवा दें ना, डिमैट ट्रेडी अकाउंट जी, तो उनको कितना ये देना पड़ता है हमको, उनका जो फीस कमीशन, हाँ, उनको कितना कमीशन देना पड़ता है? कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है? हाँ, कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है? जी हाँ, जब आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं। एक तो कि आमतौर पर ये 0.25% से 0.5% के बीच में होता है जब आप किसी ऐसे ब्रोकर के पास जाते हैं जो ये कमीशन लेता है। लेकिन आज के दिन बहुत सारे जीरो कमीशन वाले भी ब्रोकर आ गए हैं। आपने देखा होगा कि ज़ीरोधा करके एक कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी, जो कि अगर आप शेयर खरीदते हैं और खरीद करके अगर बहुत साल तक अपने अकाउंट में रखते हैं तो उस पर वो कमीशन लेती ही नहीं। उसके अलावा भी ढेर सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे आज के दिन एक ग्रो करके GROW, ये कंपनी है जहां पर आप शेयर खरीद बेच सकते हैं, वहां पे भी कोई कमीशन नहीं लगता है। ये कमीशन तब लेते हैं जब आप कोई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई आप F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खरीद के पैसा लगाते हैं, डेरिवेटिव में पैसा लगाते हैं, या फिर सुबह खरीद के शाम तक अगर आप बेच देते हैं, तब ये कुछ ब्रोकरेज लेते हैं जो कि ग्रो पे 0.1% है या कुछ इसी तरीके का बहुत मामूली सा ब्रोकरेज, लेकिन ज़ीरोधा पे भी है। या इस तरह के बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आज के दिन ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं, अगर आप शेयर खरीद करके कई सालों के लिए अपने पास रखते हैं। अगर वन टाइम फी भी नहीं लेते शुरू में? नहीं, वन टाइम फी भी नहीं लेते हैं, बल्कि आपको शायद 200-250-300 रुपए साल का डीमैट का खर्चा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कि आपको खर्चा नहीं लगता है। 3 ऐसे खर्चे हैं जिससे आपको बचा नहीं जा सकता है। एक तो कि सेबी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो एक मामूली सा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज का फी होता है जो कि लगता है। उसके अलावा सेबी का एक फी है, और ये सब कुछ दशमलव के बाद 2 शून्य लगाने के बाद के फीस है, तो बहुत मामूली सा रकम शायद। लेकिन ये 3 चार्जेस हैं जो कि आपके स्टॉक खरीदने पे लगता है अगर ब्रोकरेज नहीं भी लगे तो। अगले कॉलर हैं अशोक फरीदाबाद से। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए, एक खबर है उस पर नजर डाल के आपसे बात करेंगे। Sure. India's holdings of American government securities increased by nearly $13 billion to $169.9 billion at the end of May, according to latest official data. So far this year, the country's exposure has been significant fluctuations and had touched a record high of $177.5 billion in February. After marginally rising to $157.4 billion in April,
The holdings jumped to $169.9 billion in May, an increase of around $13 billion in a month's time. In March, the exposure had come down steeply to $156.5 billion from the record high in February, according to data from the U.S. Treasury Department. India was the 12th largest holder of American government securities, while Japan had the maximum exposure at $1.26 trillion at the end of May. At the second spot was China with holdings of $1.08 trillion, followed by United Kingdom at the third place with an exposure of $393.5 billion. Ireland is at fourth position, followed by Brazil, Luxembourg, Hong Kong and Switzerland. और अब अशोक जी हैं हमारे अगले कॉलर. बहुत बहुत स्वागत आपका. बताएं क्या पूछना चाहते हैं. गुड इवनिंग धीरेन्द्र जी. ये फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, इसका परफॉर्मेंस खराब रहा है क्यों? और इसके खर्चे भी 1.18% है, जबकि इसके आधे खर्चे पे एक्सिस मिड कैप फंड इज परफॉर्मिंग बेटर. ये खर्चे जो फंड के हैं इसके आधे हैं, उसके डबल खर्चे हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई एमफी या सेबी कार्रवाई नहीं कर सकता कि आप इतने ज्यादा चार्जेस, मतलब स्प्रेड ज्यादा ना हो, 10-20% सब्जी कम मिल जाती, ज्यादा मिल जाती, ठीक है, लेकिन ज्यादा चार्ज कर रहे हैं. और दूसरा सर, नेक्स्ट ईयर आप तो स्टॉक पे भी करते हैं काम वाम, तो नेक्स्ट ईयर दिवाली पर, नॉट दिस दिवाली, नेक्स्ट ईयर दिवाली पे आप स्टॉक मार्केट कहाँ देखते हैं? होपफुली क्या लेवल आ रहेगा आपके हिसाब से? थैंक यू. मार्केट के लेवल के बारे में मैं गेस नहीं करता हूँ, बड़ी बेइज्जती होती है. इसलिए मुझे पता नहीं, और किसी को पता हो तो उस पर भी आप खास कोई अगर कहे भी तो उसका खास मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि किसी का कुछ लेना देना होता नहीं है. लोग गेस करते रहते हैं. ये अच्छा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्योंकि इंडेक्स कहाँ पे होगा और उसका आधार क्या हो सकता है. आपने देखा कि पिछले अभी सेंसेक्स काफी बढ़ा हुआ है या अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन इंडेक्स में जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो केवल अब 10 हो गए हैं, 5-7 हो गए हैं. तो जब आप निफ्टी जैसे इंडेक्स में 5-7 स्टॉक के बढ़ने से ही केवल अगर इंडेक्स आगे बढ़ रहा है, और उनको गेस करना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल था. किसी को नहीं पता था कि रिलायंस के दाम में इस तरह की वृद्धि होगी ऐसे समय में, जबकि वो पिछले 10 साल से अच्छा नहीं कर रहा था. पिछले 10 साल तक 2 साल पहले तक रिलायंस के सब में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो रिटर्न मिलता है उतना नहीं मिला था, पर पिछले दो साल में ये सारा बदलाव आ गया है, भारी रिटर्न मिला है, और जिसकी वजह से ये और पिछले 2 साल में ये करीब 3 गुना हो गया है, जो कि सेंसेक्स और निफ्टी का बड़ा ड्राइवर है. तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है. जो इंडेक्स के आप खर्चे के बारे में पूछ रहे थे, खर्चे के बारे में पाबंदी है. म्यूचुअल फंड में सेबी ने का जो नियम है वो बड़ा क्लियर है. मुझे जानकारी नहीं है कि आपका जो पैसा है वो रेगुलर प्लान में लगा है या डायरेक्ट प्लान में लगा है, लेकिन फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड का जो डायरेक्ट प्लान है उसका भी खर्चा 1.18%, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है उसके साइज के रिलेशन में अगर देखा जाए, क्योंकि 5,000 करोड़ का फंड है. लेकिन यहाँ पे सेबी का नियम बहुत ही क्लियर है कि जैसे जैसे फंड बड़ा होता जाएगा उसके खर्चे कम होते जाएंगे, और उस नियम का सब लोग पालन करते हैं. वो चूंकि एक्सिस का फंड छोटा है और नहीं, अगर मुझे जानकारी नहीं है कि एक्सिस का जो स्मॉल कैप फंड है वो कितना बड़ा है, वो छोटा है, और उसका खर्चा, उसका जो एक्सपेंस रेशियो है. समय समाप्त होने को है, इसलिए हमें अब आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी. अपने श्रोताओं से भी, अरुण है दिल्ली से हमारे साथ, हम आपसे अनुरोध करेंगे आप हमें अगले संडे जरूर फोन करें. बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी. धन्यवाद आपका. And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we wind up, a quick look at the top stories. Domestic debt mutual funds get inflows of 1.1 lakh crores in June quarter. Foreign investors pump in over 2,300 crore rupees in equities so far in July. And India increases holdings of American government securities to nearly $170 billion in May this year. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.